Hello student, in this video we are going to discuss projectile motion, and in order to build up your concepts for projectile motion, in this video I am going to present several questions in front of you. I would prefer that you should pause the video after the question has appeared on the screen, and then you should try to state the answer or give the answer, and then play the video and try to correlate your answer with the suggestive answer that I have stated over there. This will help you to build up the concept about projectile motion, as well as help you to develop a problem solving approach for projectile motion. Friends, you can see here there is a child who kicks the football up in the air with some initial velocity u, making some angle theta. Now, my first question for all of you is to draw the snapshot for the football at different intervals of time, and then try to name the shape so formed. So student, as the football goes up in the air, you will find this football to be at different places at different instant of time. So let's say at t is equals to 0, the football might be situated over here, isn't it? Then at t is equals to 0, the football was here. After some seconds, say at t is equals to t1, the football was here. At t is equals to t2, the football goes up in the air. At t is equals to t3, the football goes over here, and so on. So this is the actual path taken by the football at different instant of time, and let's say after t is equals to capital T seconds, the football lands onto the ground. So this is eventually it has landed onto the ground. So these are the snapshots of the football at different intervals of time. And if the shape, you think this particular shape that I have drawn onto the screen is often referred mathematically as parabolic shape or simply parabola, and this particular type of motion can also be called as curvilinear motion. बच्चों, तो ये जो शेप आप देख रहे हो, ये शेप जो है ये एक पैराबोलिक शेप है. इस शेप को हम लोग मैथमेटिक्स में पैराबोला कहते हैं, और जो एग्जाम्पल है इस तरह का, ये मोशन का जो एग्जाम्पल, इसे कर्विलिनियर मोशन के नाम से भी बच्चों पढ़ा और जाना जाता है. ठीक, तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये था. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. नाउ माय सेकंड क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, ट्राई टू स्टेट about the x component of the velocity and y component of the initial velocity. Students, you can pause the video and try to answer on your own. Okay, now as you can see, the projectile was, or the football was kicked with initial velocity of u, which was making some angle theta. Since the initial velocity is not directed along the x direction or along the x axis, neither it is directed along the y axis. So if any vector which is not directed along our reference axes, what are reference axes in motion? Mostly it is going to be the horizontal direction and the vertical direction. Such vectors are often referred as naughty vector. Now students, in my teaching profession, I often use to call these vectors as naughty vectors. It is not a textbook term. So this
initial velocity is neither directed along our x-axis nor it is directed along the y-axis. That's the reason why I'm calling it as naughty vector. So what I do, how to handle these naughty vectors? In order to handle these naughty vectors, I simply resolve them. So what I'm going to do, I'm going to resolve this initial velocity u into two components. One along the horizontal direction, that is the x-axis, another along the y direction or vertical axis. स्टूडेंट्स, जिस वेक्टर जिस भी एक्सिस से एंगल बनाता है, ठीक बात है बच्चों, जो भी वेक्टर आप जिसको रिजॉल्व करना चल रहे हैं वो जिस भी एक्सिस से एंगल, जैसे यहां पर देखिए u वेक्टर जो है वो x एक्सिस से थीटा डिग्री का एंगल बना रहा। तो जो भी वेक्टर जिस भी एक्सिस से कोई एंगल बनाता है उसके अलोंग जो कंपोनेंट मिलता है वो कॉस कंपोनेंट होता है। यानी अगर मैं इस u को रिजॉल्व करूंगा और u x एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है तो x एक्सिस के अलोंग जो u का कंपोनेंट मिलेगा बच्चों उसको मैं u cos थीटा कहूंगा, और ठीक इसी के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिलेगा बच्चों उसको मैं क्या कहता हूं, u sin थीटा। तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर को, किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं। और सिर्फ ये व्यू के लिए नहीं है, फोर्स के लिए भी, मोमेंटम के लिए भी, किसी भी वेक्टर के लिए चल सकता है ये u sin थीटा। तो ये एक तरीका है वेक्टर को रिजॉल्व करने के लिए। किस वेक्टर को? जो वेक्टर नॉटी है, यानी कि वो x एक्सिस या y एक्सिस के अलोंग लाइन नहीं करते। चलिए, तो यहां पर देखते हैं ये वेक्टर u है हमारे पास, और इस u वेक्टर को मुझे रिजॉल्व करना है तो इसके दो कंपोनेंट निकल के आएंगे बच्चों। एक कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग है यानी x एक्सिस के अलोंग है उसको आप कह रहे हो u cos थीटा, तो आप ये येलो वाला वेक्टर देख सकते हैं, दिस इज माय u cos थीटा। और ये जो वेक्टर ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो u sin थीटा। तो u cos थीटा इज द वेक्टर व्हिच इज डायरेक्टेड अलोंग द x एक्सिस और इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज x कंपोनेंट बच्चों। तो अब आपके पास x कंपोनेंट आ गया, और जो y एक्सिस के अलोंग है बच्चों उसको मैंने इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट कह दिया uy, और उसकी वैल्यू आ गई u sin थीटा। तो आई होप this will explain you how to resolve the vector into its component. Now the next question that comes onto the screen is, which component of velocity is responsible for motion along x axis and which component is responsible for the motion along y axis? बच्चों देखो, ux component जो है यानी x axis का जो component है इनिशियल वेलोसिटी का, वही इस फुटबॉल को x एक्सिस के अलोंग मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाला है। और देख रहे हो जो कंपोनेंट आपका y एक्सिस के अलोंग गया है बच्चों यानी u sin थीटा, तो ये जो कंपोनेंट आपका y एक्सिस के अलोंग गया यानी u sin थीटा, ये कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का ये फुटबॉल को ऊपर की तरफ यानी y एक्सिस के अलोंग ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया u cos theta is responsible for motion of football along the x-axis and u sin theta is the component of velocity which is responsible for motion of football along the y-axis. Okay, so ux is going to drive the football along the x-axis, और बच्चों ये जो फुटबॉल इवेंचुअली जहां पर जाकर लैंड करेगी ये ग्राउंड पे, तो जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन था बच्चों जहां से आपने फुटबॉल को हिट किया था उसको मैं कह रहा हूं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जहां पर लैंडिंग पॉइंट है, देख रहे हैं ये लैंडिंग पॉइंट जहां पर फुटबॉल लैंड कर गया है, इस डिस्टेंस को x एक्सिस के अलोंग के डिस्टेंस को हम हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। और जितनी मैक्सिमम हाइट फुटबॉल ने अपने उस मोशन के दौरान obtained करी है, the maximum height obtained by the football is going to be called as height of the projectile या height of the football। और जितनी देर तक फुटबॉल हवा में ट्रैवल करता रहा, this time is called as time of flight। तो बच्चों जो कैपिटल T सेकेंड्स हमने लिखा, ये क्या हो गया? फुटबॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट, द टाइम इंटरवल फॉर विच द फुटबॉल रिमेन इन एयर। So these terms are going to be quite useful for you. So the horizontal range
or simply range, and range happens to be the distance between the point of projection to the landing point. And remember, the range is defined when the point of projection and the landing point, they happen to lie at the same horizontal rail. They happen to lie on the same horizontal level. ठीक है, ये रेंज का मीनिंग और रेंज की बात तभी एप्लीकेबल है बच्चों जब जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है और जो लैंडिंग पॉइंट है ना वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे लाई कर रहे हैं। मतलब जहां से आपने फुटबॉल को हिट किया, अगर वो ग्राउंड से और वो ग्राउंड पर ही आकर लैंड करता, तभी उस डिस्टेंस को हम रेंज का नाम देंगे। ठीक है, अगर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऊपर या नीचे लाई कर जाएगा तब वो वर्ड रेंज उसके लिए नहीं इस्तेमाल करते, उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का इस्तेमाल करेंगे। और वो एक अलग सेट ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसको हम लोग हैंडल करने का तरीका किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये टर्म्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए, हॉरिजॉन्टल रेंज या सिंपली रेंज। देन मैक्सिमम हाइट, ये जो हाइट अटेन्ड है h, दिस इज गोइंग टू बी रेफर्ड often as maximum height attained by the projectile। और जितनी देर तक फुटबॉल या प्रोजेक्टाइल हवा में रहा वो टाइम ऑफ फ्लाइट। बच्चों मैं एक चीज और कहूंगा कि अगर आपने अभी तक ये टर्म्स और टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज फर्स्ट गो एंड वॉच दैट पर्टिकुलर video which explains you different terms associated with projectile motion. Now we have got another question coming up for you. Now the questions ask you, is there any component of acceleration acting on the football along the x-axis or horizontal axis? तो बच्चों क्या फुटबॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई पुश या पुल मिल रहा है? क्या इस डायरेक्शन में फुटबॉल को कोई खींच रहा है एक्स एक्सिस के अलावा? तो आंसर है नो। तो एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस इज डेफिनेटली जीरो, क्योंकि फुटबॉल को कोई फ्रंट में आगे की तरफ एक्स एक्सिस के अलावा कोई खींच नहीं रहा, कोई फोर्स नहीं लग रही है फुटबॉल को जो आगे की तरफ ड्राइव कर रही हो। अच्छा, क्या फुटबॉल को कोई नीचे की तरफ खींच रहा है? जब फुटबॉल हवा में ऊपर की तरफ जाती है तो क्या फुटबॉल को कोई नीचे की तरफ खींचता है? तो यस, नीचे की तरफ हमेशा धरती माता का एक पुल एक्ट करता है जिसकी वैल्यू होती है 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो जब फुटबॉल आपका हवा में ट्रैवल कर रहा होता है तो नीचे की तरफ डेफिनेटली फुटबॉल को एक एक्सेलरेशन मिलता है, नीचे की तरफ खींचा जाता है फुटबॉल, जिसकी वजह से एक एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द डाउनवर्ड साइड मिलता है जिसकी वैल्यू 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाती है। सो डेफिनेटली अलोंग द एक्स एक्सिस देयर इज नो component of acceleration which is accelerating the football along the positive of the x-axis, along the x-axis, but definitely there is one component of acceleration which is acting vertically downwards that always tries to pull the football downwards towards the surface of the earth, and this component of acceleration is called as acceleration due to gravity, and the value of this happens to be 9.8 meter per second square or 10 meter per second square. So I hope this answer is also clear. Is there any component of acceleration acting? Yes, there is. No, sorry, there is no component of acceleration acting along the x-axis. So please take care. There is no component of acceleration acting along the x-axis or horizontal, but yes, there is one component of acceleration that acts in the vertical direction along the y-axis or the negative y-axis, and that happens to be 9.8 meter per second square or 10 meter per second square. Now let's move on to the next set of questions, students. So I'm about to remove all these things. Okay, now what is the next question? State the value of acceleration during the upward motion of the football and towards for the downward motion of the football. बच्चों, जब मैंने फुटबॉल को किक किया तो ये जो मोशन इधर ऊपर की तरफ जा रहा है ये अपवर्ड मोशन है। ठीक है, यहां पे फुटबॉल अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेता है
और जब कोई भी बॉडी एट द मैक्सिमम हाइट होती है तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती। कौन सी कंपोनेंट की वेलोसिटी जीरो हो रही बच्चों? अरे भैया मोशन वाई एक्सिस के अलोंग है ना, तो वाई कंपोनेंट की ही तो वेलोसिटी जीरो होगी। तो एट द मैक्सिमम हाइट पे वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विल बिकम इक्वल टू जीरो। तो आप देखो यहां पर मैक्सिमम कंपोनेंट वाई एक्सिस के लॉन्ग मैक्सिमम था, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे मैक्सिमम थी। जैसे जैसे ये फुटबॉल ऊपर हवा में जाने लगा, आप क्या पा रहे हो कि जो वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है वो डिक्रीज होने लगा। क्यों डिक्रीज होने लगा? क्योंकि जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था, ऑपोजिट टू द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है बच्चों, तो इसकी वजह से जो y कंपोनेंट था वो डिक्रीज होता गया और जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा है फुटबॉल, तो ये y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी हैज इवेंचुअली बिकम जीरो। और फिर धीरे धीरे ये वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है y एक्सिस के अलोंग वो इंक्रीज करने लगा, तो ये बढ़ने लगा। ठीक है, और आप देखोगे कि जो ये मोशन है ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल मोशन है बच्चों। और इस बात का ध्यान रखिएगा, यहां से यहां तक का जो फ्लाइट है इसे अपवर्ड मोशन फ्लाइट कहते हैं, और मैक्सिमम हाइट के बाद जो नीचे की तरफ आ रहा है ये इसका डाउनवर्ड मोशन ऑफ द फ्लाइट कहलाता है। अब जब ये ऊपर जा रहा था तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे ही की तरफ एक्ट कर रही थी, g माइनस जे का, और जब ये डाउनवर्ड आ रहा तो भी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे ही की तरफ एक्ट कर रही है ना भैया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सेंस ऑफ डायरेक्शन कभी नहीं बदलता बच्चों, चाहे फुटबॉल ऊपर जा रहा हो चाहे फुटबॉल नीचे आ रहा हो। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू हमेशा 9.8 और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहती है, और उसका डायरेक्शन हमेशा माइनस जे कैप होता है। तो बेटा हमने तुमसे पूछा कि स्टेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, तो हो गया 9.8 और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस जे का। डायरेक्शन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कभी भी नहीं बदलता और वो हमेशा नीचे की तरफ ही डायरेक्टेड होता है। हाँ, अपवर्ड मोशन ऑफ फ्लाइट में ये इनिशियल वेलोसिटी के या वेलोसिटी के ऑपोजिट एक्ट करता है, इनिशियल वेलोसिटी और वेलोसिटी दोनों के ही ऑपोजिट एक्ट करता है। लेकिन डाउनवर्ड मोशन ऑफ द फ्लाइट में वो वेलोसिटी के डायरेक्शन के अलोंग एक्ट करता है। तो ध्यान देना बच्चों, वेलोसिटी के डायरेक्शन के अलोंग एक्ट कर रहा है और यहां पर ये वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट एक्ट कर रहा है, सिर्फ फर्क इतना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, so I hope the answer to this question is also very clear. State the value as well as direction of acceleration due to gravity during the upward motion and the downward motion of the football. Okay. Now, when a body is projected vertically upward, what is the velocity of the body at its maximum height? अभी just now I told you. ठीक है ना कि at the maximum height, so any motion which will be at the maximum height of its flight would have the vertical component or the y component being equal to 0. y अगर वो 0 नहीं होता बच्चों तो फुटबॉल या वो बॉडी और ऊपर हवा में जाती कि नहीं जाती? अरे भाई अगर यहाँ पे कुछ भी वेलोसिटी फुटबॉल के पास होती तो इससे थोड़ा और ऊपर उठ जाती। मैं y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, x कंपोनेंट तो हमेशा है, लेकिन अगर इसके पास कुछ भी y कंपोनेंट होता वेलोसिटी का तो फुटबॉल की ये मैक्सिमम हाइट नहीं होती, थोड़ा और ऊपर जाती। लेकिन अगर वहां पर मैक्सिमम हाइट पर y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी 0 हो जाएगी तभी तो फुटबॉल अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा। अब क्वेश्चन ने पूछा ये नहीं है कि व्हाट इज द y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, क्वेश्चन ये पूछा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट इट्स मैक्सिमम हाइट। चलिए अब और देखते हैं। अच्छा, इसकी x कंपोनेंट वेलोसिटी क्या है बच्चों? वो तो u cos थीटा है ना। तो यहां पर भी u cos थीटा रहेगा, 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 यहां पर भी वेलोसिटी u cos थीटा रहेगी, यहां पर भी वेलोसिटी u cos थीटा रहेगी, यहां पर भी वेलोसिटी u cos थीटा रहेगी। हर पॉइंट पर
जो x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है बच्चों, वो u cos थीटा ही बनी रहेगी, ये ध्यान रखना है। y कंपोनेंट मैक्सिमम हाइट पे 0 हुआ है, लेकिन x कंपोनेंट तो u cos थीटा बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? अरे भाई, अभी हम लोगों ने जब एक्सेलरेशन की चर्चा कर रहे थे तो हम लोगों ने कहा था ना कि x एक्सिस के अलोंग कोई भी एक्सेलरेशन का कंपोनेंट तो एक्ट कर ही नहीं रहा है। और बच्चों, जब x एक्सिस के अलोंग कोई भी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की कोई भी कंपोनेंट जो है वो एक्ट ही नहीं कर रही, तो वेलोसिटी का कंपोनेंट क्यों चेंज होगा? तो x एक्सिस के अलोंग जो इनिशियल कंपोनेंट है वही फाइनल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी भी हो जाएगा, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? u cos थीटा। तो मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी वेक्टर है वो क्या हो जाएगा? तो वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा vx कंपोनेंट प्लस vy कंपोनेंट। अब x कंपोनेंट तो अनचेंज रहा u cos थीटा i का, और y कंपोनेंट तो 0 हो गया एकदम मैक्सिमम हाइट, ये एट मैक्सिमम हाइट पे है। तो व्हाट इज द वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट? The velocity at the maximum height happens to be u cos theta I cap. So you need to understand that at the maximum height, the y component of the velocity definitely becomes 0, but not the x component of the velocity. That's why when you are stating this particular answer, please take care. I have not asked you the y component of the velocity, I have just asked you what is the velocity of the body at the maximum height. ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन में गड़बड़ी कर जाते हैं। अगर कभी आपका वाइवा वॉस हो तो ये क्वेश्चंस आपके वाइवा वॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। Now, next question for you all is, at maximum height of the football, state the value of y component of the velocity and the x component of the velocity. तो बच्चों, मैंने शायद यहाँ पे ऑलरेडी आंसर पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। y component of the velocity at the maximum height will definitely be 0, and what about the x component of the velocity? That will be u cos theta. So 0, u cos theta, और मैंने आपको फिर वेलोसिटी के भी टोटल या नेट वेलोसिटी जो मैक्सिमम हाइट पे होगी उसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके दे दिया है। तो बच्चों, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चंस के आंसर्स को हैंडल करिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के सेट की तरफ बढ़ते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं फ्रेंड्स। Okay, let's move to the next set of questions. Now the question asks us, can you find the time interval that the football would take in order to reach the highest point of motion? तो बच्चों, ये हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मोशन में पहुंचने में उसको कुल कितना टाइम लगा, मैं उसको t/2 कह दे रहा हूं। तो कुल कितना टाइम लगा उसको हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मोशन में पहुंचने के लिए? तो चलिए जाए इस बात को देखते हैं। हमारे पास मोशन को पढ़ने के लिए 3 इक्वेशंस हैं बेसिकली। क्या है वो 3 इक्वेशन? v is equals to u plus at, v square is equals to u square plus 2as, और s is equals to ut plus half at square। बच्चों, जिस एक्सिस के अबाउट मुझे मोशन को पढ़ना, मैं उस एक्सिस के अबाउट इन तीनों इक्वेशन का इस्तेमाल करूंगा। अब मुझसे पूछा जा रहा हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मोशन। अब हाईएस्ट पॉइंट यानी हाइट के ऊपर बात हो रही है, तो हाइट के ऊपर बात होने के लिए मुझे वाई एक्सिस मोशन की एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो लेट्स टॉक अबाउट द वाई एक्सिस मोशन। Now, what is the maximum velocity? What is the velocity, not maximum, what is the velocity of the football or the ball at the highest point of the motion? Velocity of the football at highest point of its motion बच्चों। पीछे डिस्कशन में अभी हम लोगों ने देखा था ना। तो what is the velocity of the football at the highest point of the motion? That is 0. What is the initial velocity of the football? तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फुटबॉल क्या है बच्चों? वो है आपका u sin थीटा। और मुझे निकालना क्या है बच्चों? मुझे टाइम निकालना जब तक बॉडी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच रही है। और व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द फुटबॉल एक्टिंग और एक्सपीरियंस बाय द फुटबॉल? तो बच्चों, वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कितना है? वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है g - j कैप।
ये आई कैप। बच्चों इस इक्वेशंस को यूज करने के लिए हमेशा डायरेक्शन सेंस के साथ इनको यूज करना, तो ध्यान रखिएगा, along with direction sense, use with direction sense। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, v इज इक्वल्स टू u प्लस AT। अब चूंकि मैं y एक्सिस के अलॉन्ग पढ़ रहा हूं तो मैं यहाँ पे जानबूझ के y लिख दे रहा हूं ताकि आपसे गलती ना हो, आप इस बात को समझ सके कि मोशन मैं y एक्सिस के अबाउट ही पढ़ने जा रहा हूं। तो अब व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द मोशन एट द हाईएस्ट पॉइंट, दैट इज 0। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी बच्चों, दैट इज u sin थीटा। What is the acceleration, g minus j cap, so minus g j cap। यहां पर भी j cap है, सॉरी बच्चों, यहां पर भी j cap है बच्चों, ये तो ये j cap और टाइम वो t half, so t half comes out to be u sin theta by g। So this is the time that the football takes to reach the maximum height। अगर यहां से अपवर्ड जर्नी में इतना टाइम लगा तो डाउनवर्ड जर्नी में भी तो इतना ही टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, जिसको आप कैपिटल T से डिनोट करते हो। तो जो अपवर्ड जर्नी का फ्लाइट है, टाइम फॉर अपवर्ड जर्नी प्लस टाइम टू टेक द डाउनवर्ड जर्नी। अब बच्चों सिमेट्रिकल मोशन था, जैसा मैंने आपसे उस समय बताया था, तो u sin थीटा बाई जी प्लस u sin थीटा बाई जी। सो टाइम ऑफ फ्लाइट जो लगा बच्चों वो हो गया 2u sin थीटा बाई जी। क्लियर है? तो मैंने इसमें एक स्टेप आगे बढ़ के आपसे बात कर ली, सिर्फ मैंने मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के टाइम को नहीं डिस्कस किया, बल्कि मैंने आपके साथ वो टाइम इंटरवल भी डिस्कस कर लिया जिसमें फुटबॉल या जितनी देर तक फुटबॉल हवा में बनी रहती है। तो दोनों ही क्वेश्चन का आंसर यहां पे आपके सामने आ चुका है। फॉर रीचिंग टू द मैक्सिमम हाइट एज वेल एज द टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर विच द फुटबॉल वाज इन एयर। अच्छा, एक और तरीका है, एक और व्यू देता हूं, एक और पर्सपेक्टिव देता हूं बच्चों इसी डिस्कशन में, टू फाइंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। चलो वो पर्सपेक्टिव भी अच्छा है, वो आपको हेल्प करेगा। बच्चों जब फुटबॉल फाइनली ग्राउंड पर लैंड हो गया, ठीक है, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम ऑफ फ्लाइट। Okay, now I'm going to discuss the time that the football takes eventually to land onto the ground, and this time interval is called as time of flight। एक तरीका से तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट आपके साथ डिस्कस ही कर लिया है, बट एक और पर्सपेक्टिव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। चलिए, जब व्हेन फुटबॉल हैज लैंडेड ऑनटू द ग्राउंड, व्हेन football has eventually landed on the ground। बच्चों जब फुटबॉल इवेंचुअली ग्राउंड पर लैंड कर गया, यानी यहां तक पर लैंड कर गया, तो कितना टाइम लगा, उस टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, अब देखो जब फुटबॉल हवा से चला, यहां से चला, हवा में उड़ा और इवेंचुअली लैंड कर गया, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फुटबॉल along the y-axis, along the vertical और y-axis। ठीक है ना बच्चों? अब तुम ना सोचो ना, फुटबॉल यहां से चला, ऊपर गया, यहां पर तो डिस्प्लेसमेंट है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, यहां पर डिस्प्लेसमेंट है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, यहां पर डिस्प्लेसमेंट है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट है ग्राउंड। बट इवेंचुअली जब फुटबॉल लैंड कर गया ग्राउंड पे बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया इस जगह पे, जहां से चला वहीं पर तो आया, ग्राउंड से उठा और ग्राउंड पे ही लैंड कर गया। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फुटबॉल along the y-axis once the football has landed onto the ground? That is simply zero, isn't it? अब फुटबॉल तो वापस ग्राउंड पे आ गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों, जीरो हो गया y एक्सिस के अलावा। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस, दैट इज u sin थीटा j cap। व्हाट इज द एक्सेलरेशन अलोंग द y एक्सिस, दैट इज g minus j cap। and I'm looking for time,
That is the time of flight. Which equation out of these three is going to be useful? You will find that the third equation is useful because it is having the expression of t and I'm looking to find out that value of t, isn't it? तो चलिए इस इक्वेशन को पुट कर देते हैं. s is equals to ut plus half at square. किस एक्सिस के लॉन्ग इस मोशन को पढ़ रहे हो? y एक्सिस के लॉन्ग, तो हर जगह सफिक्स y लगा दो. What is displacement suffered by the football? That is 0. What is the initial velocity of the football? That is u sin theta j cap into t plus half. What is the acceleration? G minus j cap. And how much time it has taken? That is capital T. मैं इसको भी capital T बना देता हूँ बच्चों, क्योंकि हम एक specific interval of time पे बात अब कर रहे हैं कि specific instant पे बात कर रहे हैं. That is capital T का square. Let's try to solve it out this particular equation. J and j cap cancels out. Take t common, ठीक है, तो u sin theta minus g by 2t, and when you solve this quadratic equation, ठीक है, this gives me the answer as there are two roots, either t must be equal to 0 or t must be equals to 2u sin theta by g. So there are two instances of time when the football was on the ground. That is at t is equals to 0 when the motion was not started, when the motion had not yet started at that interval of time, and after 2u sin theta by g seconds, eventually the football will again be at the displacement 0. So this perspective also gives you a new way to look at the problem. So you can take any of these perspectives to solve for value of time of flight. Hope this discussion had helped you to understand how to obtain an expression for time of flight and the time taken to reach the maximum height. So time of flight capital T was 2u sin theta by g बच्चों, और साथ ही साथ आपके पास मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का जो टाइम है उसको मैं t हाफ लिख रहा हूं मैक्सिमम, एंड दैट इज u sin थीटा बाय g. और बच्चों एक चीज को ध्यान दीजिएगा, u sin थीटा जो है y कंपोनेंट है, तो 2u y कंपोनेंट अपॉन g, uy इंडिकेट्स द y कंपोनेंट और सिंपली uy बाय g. तो कई बार क्या होता है आपको y कंपोनेंट दे दिया तो उसके टर्म्स में अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह निकालना तो ये पर्सपेक्टिव आपको हेल्प करेगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Also find the time taken by the football to hit the ground. I've already told you that is known as time of flight, and that value comes out to be 2u sin theta by g. Now the next question asks me to find out the maximum height attained by the football. ठीक है बच्चों, तो चलिए अब निकालते हैं मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द फुटबॉल. मैं जहाँ से इन चीज़ों को यहाँ लिख दे रहा हूँ जो अभी आपने निकाला था, टी हाफ दैट वाज u sin थीटा बाय g और सिंपली uy बाय g. और बच्चों इसको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कह रहे थे t, दैट इज 2u sin थीटा बाय g. और ये सॉल्व होके आया था 2uy, where uy is the y component of the velocity. Hope these two answers are clearly seen by you all. Now I need to find out the maximum height attained by the football. बच्चों वापस से आता हूँ, what is the, there are only three equation of motion, ठीक है ना, कौन कौन सी है देख लीजिए. v is equals to u plus at, v square is equals to u square plus 2as, and s is equals to ut plus half at square. वीडियो को पॉज करके अगर अपने आप से आंसर निकालने की कोशिश करेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड अपॉन करने के लिए. जरा सोचिए, जब फुटबॉल मैक्सिमम हाइट पर है तो व्हाट इज द y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट. याद करिए अभी डिस्कशन पीछे जो किया था, y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट इज 0. तो ध्यान रखिएगा एट मैक्सिमम हाइट y component of the velocity eventually is 0. अरे भाई अगर उस जगह पे कुछ भी और velocity होती तो फुटबॉल और ऊपर जाता ना.
वंस अगेन हमें चूंकि वाई एक्सिस मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं तो हमें वाई एक्सिस मोशन को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वंस अगेन डिस्कसिंग द मोशन अबाउट वाई एक्सिस। अबाउट वाई एक्सिस और वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक बात है बच्चों। तो हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब देखो, मुझे इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के लॉन्ग पता है कि नहीं पता है? ये वाली पता है ना, कितनी है? u sin थीटा। एक्सेलरेशन वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना है बच्चों? g माइनस जे कैप है। अच्छा, अब मुझे मैक्सिमम हाइट पे क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी फाइंड करनी है। सॉरी, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या है बच्चों? फाइंड क्या करनी हो, तो अभी डिस्कशन में हम लोगों ने स्टेट कर ही दिया है। तो मैक्सिमम हाइट पे y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी क्या है बच्चों? वो हो गई 0। ठीक है, वो आ गया 0। अब मुझे हाइट निकालनी है, तो मैं इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन को लूं? भाई इस इक्वेशन में हाइट का कोई रोल नहीं, डिस्प्लेसमेंट की बात ही नहीं करता। या तो आप इस इक्वेशन का यूज कर सकते हो या आप इस इक्वेशन का यूज कर सकते हो। मुझे ये इक्वेशन ज्यादा आसान दिख रही है क्योंकि इसमें y कंपोनेंट जो है मैक्सिमम हाइट पे 0 है, तो मैं इसका इस्तेमाल कर लेता हूं बच्चों। तो ये हो गया 0 का स्क्वायर, ये हो गया u साइन थीटा का स्क्वायर, j का स्क्वायर हो जाता है 1 बच्चों, ठीक है। j स्क्वायर इज 1, j वेक्टर का स्क्वायर है और j वेक्टर का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 एक्सेलरेशन कितना है? g माइनस जे का, हाइट ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हुई तो j का, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2gh, और यहां से h की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? बड़ी आसानी से निकल के आ रही है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। तो क्या मैक्सिमम हाइट फुटबॉल अटेंड कर रहा है? दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। सो दिस इज द एक्सप्रेशन for the maximum height attained by the football। और अगर तुम चाहो तो इस एक्सप्रेशन को इस तरह से भी देख सकते हो, h इज इक्वल टू यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g है ना ये, और ये कुछ नहीं है, y कंपोनेंट के अलोंग का ही तो स्क्वायर है, तो यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। तो बच्चों काइंडली टेक केयर अबाउट दिस एक्सप्रेशन दैट यू हैव डिराइव्ड फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम हाइट ऑफ द फुटबॉल, and that is u square sin square theta by 2g, ठीक है। ये काफी हैंडी होगा इन ये इक्वेशंस को याद रखना किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ईज देंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जितना भी डिस्कशन हमने या जितने भी एक्सप्रेशन जो डिराइव किए हैं, ये एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में वैलिड है बच्चों। वो कंडीशन क्या है कि जहां से जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द फुटबॉल है या जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल है और जो लैंडिंग पॉइंट है वो दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे लाई कर रहे हो, तभी इन इक्वेशन की यूटिलिटी है। एल्स इन इक्वेशन का अगर आप किसी और जगह पे इस्तेमाल करेंगे तो अपने आप को वो आप पिटफॉल में, गड्ढे में गिरा देंगे। दैट वोंट फाइंड usefulness in any other cases. So once again I am reminding you all to please be careful while using these equations. These equations are applicable only and only for those cases where the point of projection and the landing point they happen to lie on the same plane. तो उम्मीद करता हूं बच्चों you must have noted it down या अपने आप से आपने इसको derive कर लिया होगा. Let's move on to the next part. Now the question asks me to find out the maximum horizontal distance traveled by the football. यानी बच्चों फुटबॉल ने मैक्सिमम कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जिसको आपने रेंज के नाम से जानते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये जो आर है, ये आर का मतलब क्या हो जाता है? ये रेंज होती है फुटबॉल की या किसी भी प्रोजेक्टाइल की। तो न्यूमेरिकल्स में आपको काफी बार ये रेंज के नाम से लिखा हुआ भी मिलेगा। चलिए, तो हम लोग इस रेंज को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां से यहां तक पहुंचने में बच्चों टाइम कितना लगा? टाइम टेकन बाय द फुटबॉल, उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कह रहे थे टी, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी? जैसा पीछे वीडियो को
रिवाइंड करके अगर आप देखेंगे तो 2u sin थीटा बाई जी आई थी। अब मुझे किस डायरेक्शन के अबाउट मोशन को पढ़ना है भाई? मुझे तो एक्स एक्सिस के अबाउट के डायरेक्शन के मोशन को पढ़ना है ना। तो एक्स एक्सिस, तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द मोशन अबाउट एक्स एक्सिस। सो एनालाइजिंग मोशन अबाउट x axis बच्चों। So what is the initial velocity of the football along the x axis? That was u cos theta I cap यार, याद करो ये वाला येलो एरो, यही तो x axis के along initial velocity थी। क्या कोई फुटबॉल में x कंपोनेंट के along acceleration लग रहा है? क्या कोई फुटबॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खींचता था? आंसर था नहीं, तो ax was 0। टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों यहां पे ध्यान दीजिएगा, किसी भी मोशन, इस प्रोजेक्टाइल मोशन के किसी भी एग्जांपल में एक्स एक्सिस मोशन सेपरेटली हम लोग पढ़ते हैं, वाई एक्सिस मोशन सेपरेटली पढ़ते हैं, लेकिन जो टाइम का पैरामीटर होता है बच्चों वो दोनों ही एक्सिस ऑफ मोशन के अलॉन्ग दोनों को रिलेट करता है। टाइम अलग अलग नहीं होता है कि फुटबॉल एक्स एक्सिस में इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कुछ अलग टाइम लिए, वाई एक्सिस के अलॉन्ग कुछ अलग टाइम लिए, एक ही पॉइंट पे नहीं, दोनों के अलॉन्ग जो टाइम का पैरामीटर है, टाइम इंटरवल है, वो सेम रहता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, तो एक्स एक्सिस के अबाउट जो टाइम लगा है यहां पर पहुंचने में वो कितना लगा? 2u sin थीटा बाई जी। वंस अगेन हमारे पास तीन ही तो इक्वेशन ऑफ मोशन है भाई, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं और अब तक आपको दिमाग में अच्छे से बैठ भी जाना चाहिए। इस तीन इक्वेशन के अबाउट हमारे पास कोई चौथा इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है। अब इन तीनों में से कौन सा इक्वेशन का इस्तेमाल करना हमारे लिए यूजफुल होगा? हम क्या फाइंड करने चल रहे हैं बच्चे? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फुटबॉल के द्वारा सफर डिस्प्लेसमेंट। तो ये इक्वेशन का तो कोई काम ही नहीं क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट आता ही नहीं, इन दोनों में से काम होगा। तो मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना, तो मेरे लिए ये इक्वेशन यूजफुल है, मैं इसको लगा देता हूँ। तो Sx इज इक्वल्स टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। x क्यों लगा दे? क्योंकि मैं x एक्सिस के अबाउट के मोशन को एनालाइज या इस्तेमाल में लाने वाला हूं। अच्छा, इस चीज को जरा मैं इधर लिख दे रहा हूं ताकि मेरे लिए स्पेस मिल जाए काम करने के लिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो यहां तक लगा था दैट वी हैव फाउंड आउट एज 2u sin थीटा बाई जी। चलिए लगाइए। डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस को हम लोगों ने r से डिनोट कर रखा। रेंज ux कितना है? u cos थीटा है बच्चों। आई कैप पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 2u sin थीटा बाई जी। और इधर एक्सेलरेशन है नहीं तो जीरो से मल्टीप्लाई होकर सारी चीजें उधर जीरो बन जाएंगी। तो जो रेंज निकल के आया बच्चों, देखो वो क्या निकल के आ रहा है? 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। ठीक है, तो ये रेंज का फॉर्मूला हो गया बच्चों। इस रेंज के फॉर्मूले को जो निकला है u स्क्वायर 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2, ध्यान से देखना, u साइन थीटा u कॉस थीटा बाई जी। और ये चाहो तो तुम देख सकते हो इसको ux कंपोनेंट इंटू uy कंपोनेंट अपॉन। तो ये रेंज के देखने का एक और नया पर्सपेक्टिव है। तो रेंज का एक ये एक्सप्रेशन आपके पास दिमाग में आ जाना चाहिए, एक ये आ जाना चाहिए। अब जैसा ध्यान दीजिए इस एक्सप्रेशन के ऊपर फिर से मैं चाहूंगा, रेंज इज इक्वल्स टू u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। जिन्होंने मैथ्स ले रखी है तो वो जानते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री कहती है साइन 2 थीटा। बायो वालों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों? इसकी वैल्यू हो जाती है साइन 2 थीटा। तो रेंज का एक्सप्रेशन हो गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक, तो बच्चों ये रेंज के एक्सप्रेशंस हैं अलग अलग, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो हम लोगों ने इस वीडियो में मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन डिराइव किया, हम लोगों ने इस वीडियो में मैक्सिमम डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल किया फुटबॉल ने उसका एक्सप्रेशन डिराइव किया,
हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन डिराइव किया और टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट उसका भी एक्सप्रेशन डिराइव किया बच्चों। उनके अलग अलग वेरिएशंस देखे, सीखे। और ये जितने भी एक्सप्रेशंस आए हैं, मैं फिर से एक बार रिमाइंड कर रहा दूं आपको कि ये एक्सप्रेशंस एप्लीकेबल हैं तभी जब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन of the projectile and landing point are at the same level। नहीं तो ये expressions का कोई numerical में utilization करने से फायदा नहीं होगा, आपको फिर नुकसान ज्यादा हो जाएगा। So please over there you need to solve using the kinematics equation। बच्चों उम्मीद करता हूं कि मेरा ये डिस्कशन आपको मदद किया होगा डिराइव करने के लिए वो तीनों ही एक्सप्रेशंस या चारों एक्सप्रेशंस को जो काफी कॉमनली आपके स्कूल्स में टेस्ट पेपर्स में एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे। अगर इस डिस्कशन से आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला हो प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने का, तो प्लीज एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।